that could be a network issue. Okay, so today's lecture number 16. 36. Now, what we'll learn is up till now, what we have learned is about radiation, and then uh, what we have learned emission. How does it emit? How light emits? Okay, now the camera is working quite good. And then we have seen the coherent radiation. Coherent means what is coherent? with single phase. Yes, not single phase. It is same phase. Same phase or phase difference is constant throughout the process. So same phase or constant phase. So constant phase difference. That is what we call it as coherent. Now, why we need the coherent radiation? Probably yesterday did we talk about the GeoGebra uh, simulation for this coherent? Just no. No, कल sir. GeoGebra नहीं ठीक आज कर लेते हैं ठीक है. So if they are in same phase, what happens? And if they are not in phase, then what happens? That I will just show you in a minute. It's very simple. So we know that if the two waves or two or more waves, they are in phase, then there is a constructive interference. If they are not in phase, then the intensity will reduce. And if they are out of phase, then the intensity will be zero. They will cancel each other, in short. Like this, you have already studied in 12th. Like if this is a wave uh, and this is another wave with the same phase, a phase same. So they will get add up, and whatever the output you get is the intensity is increasing, the amplitude is increasing, and therefore intensity will increase. Okay. So let me show you with GeoGebra, which is much easier to understand. Uh, uh, I think I am not shared. Okay, let me share the GeoGebra screen. And then you will certainly appreciate uh, how this interference takes place. Here, we can now you can see this screen. We take any wave, sine wave, sine x, and then we take another wave which is again sine x. Why we are taking these two waves? Let me show this wave slightly up. Can you see these two waves? Yes, sir. Okay. So what is the phase difference between these two waves? Just take this phase difference of any point, this and this. We'll talk about this. So the phase is same. Okay, ये -5 पाई है ये और -6 पाई इसके बीच में. Same is for this. Okay, ये point और ये point. We talk about any point. This is 0 0. This pi. Okay. थोड़ा सा ऊपर दिखाया मैंने just to understand कि ये दो अलग अलग waves. Now we just add these two waves. That is the interference. So f plus g, f of x plus f of g of x. And then let me just add say
10 in this so that we can see the output. Oh, sorry. Output here. Now you can see that the amplitude of this wave is 1 unit. Let me show you like this. This is one amplitude. Okay, 0 to 1. Okay. Here also it is 5 to 6. That is 1, and the output is say 15 to 17. That is 2. So the amplitude is increasing. Are you getting my point? Just no. Let me get slightly closer. Okay. And now I'll go for the intensity. Now, how do you find out the intensity? Intensity कैसे find out करते हैं? If you know the amplitude. How do you find the intensity? Sir, intensity proportional to amplitude square. Yes, it is. Intensity is proportional to amplitude square. Now let us consider for our understanding कि amplitude, the proportionality constant is 1. Okay. So what we can write now? This px here. I hope that you can see this px on left hand side. Okay. So what we can do is just take this px and multiply it by again px. Now this is the intensity, right? px into px, right? आ गया, ये ऊपर आ गया. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, -20. ये देखो, ये आ गया आपकी इंटेंसिटी. कितनी ज्यादा हो गई देखो. It's too much. Okay, are you getting my point? So the intensity is very high. You are talking about only 2 waves. Why is talking about 2 waves? ठीक है, अगर हम इसको ये निकाल देते, then we will be able to understand quickly. दोनों एक जैसे एक ही जगह पे आ जाएंगे. Then I can just show this on the same line. Then this. Okay. Now this is what you can see. तो ये दोनों वेव्स दिख रही है आपको, एक के ऊपर एक आगे. ठीक है, ये fx. ओके, लेट मी शो यू द fx. ग्रीन में दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, एंड देन दिस इज gx. उसी पोजीशन पे, सेम पोजीशन. नाउ आई कैन सी fx एंड gx बोथ, एंड देन द आउटपुट एज px. ये देखो, ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं. And then from the output, that then you can see the intensity. Now this is 0 here. ये 0 है. ये यहाँ पे नहीं है 0 बीच में. यहाँ 0. Because intensity is always positive. Now you can see the intensity is, you can say that it is proportional to the amplitude square. Now if we add another wave, what will happen? Now let me go to the screen. अगर मान लो कि आप 2 वेव्स ले रहे हैं, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है, तो लेट अस कंसीडर say y1 equal to a sin x and y2 equal to a sin x. Same wave, and then you add these two. Okay, so the resultant y will be proportional to a1 plus a2. बराबर है. Output will be just addition of amplitude. It will be proportional. Again, it will be sine wave. So a1 plus a2 sine. And if a1 and a2 are same, then it is proportional to 2a. अगर a1 a2 same है तो 2a हो जाएगा. And therefore intensity will be
proportional to 2a square, that is 4a square. So this will be 4 times. आ गया ध्यान में? यस नो? अगर दो वेव्स है तो क्या होगा? इंटेंसिटी विल बी हाउ मच टाइम्स? 4 times. Am I in the meeting? Yes, sir. Yes. Okay. So if there are two waves, then the intensity will be how many times? Yes, the amplitude will be a plus a. Amplitude will be a plus a, but intensity will be a plus a whole square. नहीं, इंटेंसिटी डबल नहीं होती, यही मैं बताना चाहता हूँ. ये आप देखो यहाँ पे जियोजेब्रा में इंटेंसिटी कैसे हो रही है. नॉट शेयर्ड. ओके. सी ये कितना यूनिट है? ये देखो, ये 1 यूनिट है, राइट. ये आपका ओरिजिनल वेव हो गया, दिख रहा है? ये हो गया आपका ओरिजिनल वेव, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको. ये हो गया आपका, ये हो गया एफ एक्स, ये ग्रीन में जो दिख रहा है वो, ठीक है. और इसको हटा के मैं जी एस दिखाता हूँ. ये हो गया जी एक्स. सेम वेव है, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का. अब इनका एडिशन क्या हो गया? इनका एडिशन हो गया, ये दिख रहा है पी एक्स. ऑन ऑफ कर रहा हूँ मैं, हो गया डबल. एम्पलीट्यूड हैज बिकम, ये 1 था, दूसरे का भी 1 था, इसका 2 हो गया. क्लियर? अब उसका इंटेंसिटी देखो. टू बहुत नीचे हो गया, -5 हो गया. ओके. Now see here, it is from -5 to -1. प्लस कर लोगे? प्लस कर लेते हो तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी. तो ऊपर है, ठीक है. ये कितना हो गया? 5 से लेकर 9 तक. दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज द जीरो लाइन. समझ में आ रहा है? अगर हम इसको 0 कर लेते हैं ना, यू विल अंडरस्टैंड कि ये हो गया. ये देखो, ठीक है. समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एफ और जी को हटा देता हूँ. और दिस इज द आउटपुट. ये जो रेडिश कलर में दिख रहा है, ऑरेंज कलर में जो दिख रहा है, दिस इज द आउटपुट, दैट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कैन बी निगेटिव. ये देखो निगेटिव में जा रहा है, ठीक है. और ये जो है आपका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज ग्रीन कलर. द एम्पलीट्यूड इज 2, the intensity is 4, right? Understood? Yes, no? अब थोड़ा रिपीट करें. रिपीट करो. सिंपल है, कुछ ज्यादा ये Yes, sir. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है. ये देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ एक फंक्शन. ये इतना समझ में आया? ये साइन वेव है, ठीक है. अब दूसरी साइन वेव भी एक जैसी है, सेम ही है, तो ये इसके ऊपर ही आ जाएगी. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यहाँ पे आपको ये फंक्शन दिख रहा है. ये हो गया जी और ये हो गया एफ, ठीक है. यहाँ पे दिखा देता हूँ. तो नाउ दिस इज एफ, जी का एफ हो गया, ठीक है. इफ आई जस्ट स्टॉप द एफ एंड आई जस्ट शो द जी. अब इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया. ऐड जैसे किया तो क्या होगा? यू विल गेट द आउटपुट लाइक दिस. दो वेव को ऐड कर दिया, ठीक है. अब इसको अगर मैं स्लाइटली दिखाना चाहता हूँ तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, एक वेव को दूसरे. अरे नहीं होगा, उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे कितना यूनिट है ये वेव? यू कैन सी हियर, 0 से लेकर 1 तक उसका एम्पलीट्यूड है, एक का.
और दूसरे का भी वही है, तो 1 + 1 it becomes 2 here. Clear? Yes, sir. And in this case this is -1 and -1, so -1 + -1 it becomes -2. Clear? Yes, sir. लेकिन अगर मैं इसका इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, now this amplitude has become double, 1 + 1 2, -1 + -1 -2. But if you go for the intensity, now you can see the intensity is always positive because it is square of the amplitude. तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो गया. Oh, लेकिन -2 का स्क्वायर कितना होगा, ये यहाँ पे -2, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, oh, +4 हो गया, राइट. So the intensity is now double or square of the amplitude. तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, share now this group. Okay. Now again y1 = a sin x, इसको हमने f of x लिखा था पहले वाले, f of x. दूसरे को लिया था g of x, and then you sum up these two. Now here this was 1, this was 1, ठीक है. अब इसका एम्पलीट्यूड जो हो गया एफ जी, और इसका फंक्शन क्या लिया था, p. p of x कितना आया, p of x was 1 + 1 and again sin x, so that is 2 sin x. एम्पलीट्यूड डबल हो गया. अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी फाइंड आउट की. इंटेंसिटी इज फंक्शन ऑफ, अगेन सॉरी, q of x, अगेन इट इज फंक्शन ऑफ x. इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर एंड देन साइन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है. तो दिस इज 4 sin square x. आ गया ध्यान में. Now since this is sin square x, there is nothing negative. वहाँ निगेटिव कुछ नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव. साइन की वैल्यू अगर -1 भी आती है तो उसका स्क्वायर कितना होगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा. And therefore we get the intensity, maximum intensity as 4. Clear? yes, sir. Now if I ask you a question that if we have 3 waves, what will happen? तो ये इंटेंसिटी कितना आएगा, 3 waves के लिए कितना आएगा इंटेंसिटी? यस, राइट अभिनव, इट विल बी 9. सिंपल. ये 2 का स्क्वायर हो गया ना, यहाँ पे 2 वेव का स्क्वायर, 3 वेव का स्क्वायर एंड देन अगेन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है. So this will be 9 times. If we have 4 waves, then it will be 16. 16. ठीक है, बहुत सिंपल है. दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट द इंटेंसिटी. इंटेंसिटी कैसे बढ़ रही है, जितनी ज्यादा वेव होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी. बट इट विल नॉट बी जस्ट एडिशन, इट विल बी द स्क्वायर ऑफ द एडिशन. तो अगर n वेव है, सपोज n वेव, तो इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. तो आप सोचो कि 10 वेव अगर एक जैसी आती है, देन इट विल बी 100 टाइम्स दैट ऑफ द सिंगल इंटेंसिटी. एक वेव की जितनी इंटेंसिटी होगी उसके 100 टाइम्स इंटेंसिटी बन जाएगी. 10 टाइम्स नहीं बनेगी, तो 10 वेव्स है. क्लियर? Yes, sir. यस, नो, Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Okay. Now tell me, if you are just using the coherent waves, जो हम last time discuss कर रहे थे. So if you are using the coherent wave, that means the phase will be constant. And if the phase is constant, they will interfere constructively. And when they will interfere constructively,
the intensity will be n square times. Suppose there are 10,000 waves, तो intensity कितनी हो जाएगी? 10,000 square times. इतनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ेगी. ठीक है? But if the waves are not in phase, if they are not in phase, again we'll go to GeoGebra. Here I just go for say sin 1.1x. You can see the intensity is decreasing. ये दो वेव के लिए सिर्फ ये ग्रीन वाला जो है ना बड़ा, उसको सोचो आप. ठीक है? Now if I make this value as 1.2, now the intensity is again decreasing. If I add some, suppose some phase, say pi by 2 or pi by 4, now see the shifting is taking place. And then suppose the wave is same, but this is something like this. ये देखो ये इंटेंसिटी कम हो गई. पहले कितनी थी? 4, अब कितनी हो गई? 3.5 के आसपास. Are you getting this? So this is आप ये phase change कर रहे हैं, मतलब if the waves are not coherent. Now let us take the pi by 2. तो pi by 2 में कितना आता है? ये देखो, वो तो 2 पे आ गया. ठीक है? And if we take pi, for example, it is same as that of the original wave. नहीं, 0 हो गया. ये देखो मैं आउटपुट दिखाता हूँ. F और G मैं निकाल देता हूँ. There is no output. You can see green line दिख रही है यहाँ पे. ये हो गया H फंक्शन. दिस इज दिस. ये देखो, ये शो कर रहा हूँ मैं, हाइड भी कर रहा हूँ. Q फंक्शन, ये Q फंक्शन आपको दिख रहा है. Now here phase is just phase जैसे चेंज किया आपने वैसे उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई. एंड इफ यू हैव द सेम फेज, यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ. अगेन यू गेट द आउटपुट एज 4 टाइम्स द ओरिजिनल इंटेंसिटी. ओरिजिनल इंटेंसिटी कितनी है? तो एफ एक्स अगर लेता है तो 1 है, तो 1 के कंपैरिजन में 4 टाइम्स हो गया. ठीक है? एंड हियर if we talk about n number of photons or waves, now here we'll talk about photons and waves as the same. We'll talk about the wave nature of the photon. Now this will be very, very high. Now how to make it? How to make it in an atom? Now we know the 3 concepts. First one is the radiation. Okay. Second one we know the emission, and the third one we know the coherent. Now let us talk about the laser principle. This is the background. What is meant by laser? So laser is an acronym. Acronym क्या होता है? Basically I should write the laser as this. Acronym पता है? Abbreviation. Yes, it is abbreviation. Short form जिसे हम normal common language में. So it depends on what these words means. Every word has different meaning. So this is light amplification. By stimulated. कल हम बात कर रहे थे stimulated और spontaneous. Emission is emission of radiation. Now you know almost everything from this. You know what is radiation, you know the emission, you know the stimulated emission, and then light amplification. Light amplification क्या है? ये अभी हमने जो किया ना, लाइट को एम्पलीफाई किया. एम्पलीफायर क्या करता है?
आप लगाते हैं ना साउंड में घर में, इंटेंसिटी बढ़ हाँ इंटेंसिटी बढ़ाता है बस, खत्म। तो दैट इज व्हाट दिस इज डूइंग, इट इज अ लाइट एम्पलीफिकेशन। तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा, ठीक है, किस वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ द स्टिमुलेटेड इमिशन। ये देखेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन क्या ऑफ द रेडिएशन। So all the transitions are radiative transitions. It is not conduction or convection. Remember, we are talking about the radiation, the waves that are coming out of the material. Now let us consider uh, two-level system. This is a standard, uh, what you can say, standard model of two level. Any two level. It doesn't matter whether the level one is ground state or it is something different. It may be ground state, it may be different. Now, what we can do is there are some electrons or atoms. We'll talk about electrons or atoms interchangeably. मतलब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है मतलब एटम ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है मतलब एटम एक्साइटेड। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? मान लो कि आप आपके घर में किसी को एक प्राइज मिल गया, मेडल मिल गया, आपको मिल गया, ठीक है, तो घर में सिर्फ आप ही खुश रहेंगे क्या? नहीं, सभी खुश हो जाएंगे। तो द फैमिली विल बी हैप्पी, राइट? आपके घर में कोई फंक्शन है तो एवरीबडी विल बी हैप्पी। तो यू कैन से आई एम हैप्पी और यू कैन से माय होल फैमिली इज हैप्पी। ओके, बोल सकते हैं। सिमिलरली हियर आल्सो we can talk about electrons which are either in the ground state or atoms are in the ground state. So you can talk about number of electrons or number of atoms. It is one and the same. Now, if we give some energy to this, this energy may be in the form of, say, sometimes heat, sometimes electricity, it may be light, so and so forth. आप कोई भी दे सकते हैं। And then these electrons will go to the energy level E2. They will absorb this energy and they will go to, say, energy level E2. Now, this is what it is called as absorption. Okay. Now again, this is, remember, this is not going to happen with all atoms. There will be a probability that the atoms will absorb the energy. Of course, this energy, if it falls in the range of this difference of energy, E2 minus E1 के range में है, so then it will be absorbed. Otherwise, it will not be absorbed. कम है तब भी नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा है तब भी नहीं, थोड़ा सा कम ज्यादा चलता है, ठीक है? ये समझ में आ गया? यस नो? एब्सॉर्प्शन समझ में आ गया? ये कैसे बोल सकते हैं आप कि कम है तो एब्सॉर्ब नहीं होगा? थोड़ा सा एक हाथ यूनिट अगर कम है तो चल जाएगा, ठीक है? मान लो कि आप एक शॉप में चले गए, छोटा बच्चा है, शॉप में चला गया, 10 रुपए का बिस्किट का पूड़ा पैकेट, तो उसने बोला कि मेरे पास 9 रुपए, दुकानदार क्या कहेगा? नहीं देंगे। नहीं देगा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। 1 रुपए लेकर आओ। हाँ, ये बोलेगा कि 1 रुपया लेके आओ, ठीक है? देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो बोलेगा ठीक है यार, 1 रुपया कम है, ले जाओ। मान लो 100, देना। हाँ, मान लो कि 100 रुपीज का कुछ प्रोडक्ट है और उसके पास 99 ही है, फिर दे देंगे। दे देंगे। ठीक है। लेकिन अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है और उसके पास मान लो कि ओनली 70 रुपीज है, तब देगा क्या? नहीं देंगे, नहीं तब देंगे। डेफिनेटली नहीं देगा वो। अरे 30 रुपए बहुत होते उसमें लॉस है उसका। हाँ हाँ। तो इस ऐसे ही इसमें होता है। इसमें अगर आपको एनर्जी E2 माइनस E1 के रेंज में है, जैसे 100 रुपीज के रेंज में 99 आता है, ठीक है, ठीक है, तो वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ही कम है,
तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे ध्यान में। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल इससे ज्यादा एनर्जी है, अगर इफ यू आर गिविंग द pumping, for example, this much energy, much higher energy, intensity नहीं, intensity is different, energy is different. Remember, intensity is number of photons, कितने सारे है वो हो गया इंटेंसिटी। एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी कितना है। सपोज उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको देना था रेड, आपने दे दिया यूवी, यूवी की एनर्जी बहुत ज्यादा है, रेड की बहुत कम है। तो दैट विल बी समथिंग लाइक कि आप एक 10 रुपए का धनिया लेना है आपको, ठीक है, और आप 500 का नोट लेके गए या 2000 का नोट लेके गए, मिलेगा क्या? मिलेगा? नो। नहीं मिलेगा, बोलेगा नहीं यार छुट्टा नहीं, राइट। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। तो आपको छोटा सा अगर कुछ एनर्जी लेवल यहाँ से याद है ना, और आपने इतना बड़ा दे दिया, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दिया, इट विल नॉट एब्सॉर्ब, इट विल जस्ट से ओके लेट इट गो, आई विल नॉट एब्सॉर्ब। So it want the energy in the range of this specific energy level. Okay. थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है, इट्स ओके, वो स्प्रेड होता है, इट्स ओके। क्लियर? मान लो कि कोई प्रोडक्ट 98 रुपीज का है और आपके पास, उसने दुकानदार ने कहा कि मेरे पास 2 रुपए चिल्लर नहीं है, तो आप लेंगे नहीं लेंगे? 98 99 का है, नॉर्मली हम ले लेते, ठीक है, 1 रुपए का आप ये करना, ठीक है। So that is the same thing is happening here in absorption. Okay? Again, now these electrons which are in excited state, what they will do? Now it is something same what we are talking about the swimming pool. तो बहुत सारे एक्सपर्ट जो है स्विमिंग में, वो ये ऊपर के फ्लोर पे चले गए, यहाँ पे आ गए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्विमिंग पूल and the people are here just waiting. What they will do? Will they stay there for long time? आराम कर रहे हैं वहाँ पे? नो सर। They will start jumping, right? एक एक करके जंप करेंगे, उसको जितना टाइम लेना है उतना तो लेगा ही। ऐसा नहीं होगा कि एक ने जंप किया, वो बेचारा पहुंचा ही नहीं, दूसरा भी आ गया, ऐसा नहीं होगा। देयर विल बी शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज लाइफ टाइम। वो वहां पे कितने देर तक रहता है, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज लाइफ। हियर दीज आर जंपिंग ऑन देयर ओन। किसी ने जबरदस्ती किया है क्या? नहीं, जैसे ओके आई वांट टू जंप, आई विल जंप। So that is what it is called as spontaneous. Electrons are coming to its original position, say 1, by spontaneously. So spontaneous emission. So the emission is spontaneous. And then when these electrons lose energy, it gives out the energy. Okay, this is called as the emissive spectrum. So whatever you are getting is photon, and the energy of this photon h nu will be equal to E2 minus E1. Clear? ठीक है, any doubt, any question? Now suppose there are some electrons in some energy level, we don't know, maybe 3, I'll just put some different energy level, say 3, कोई दूसरी है, इसके ऊपर भी एक है सपोज फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे एक जो स्विमर है, ये जस्ट वेटिंग बिकॉज ही इज नोविस, एक दो है, अब उनको डर लग रहा है कि कैसे जंप करें। क्या होता है, ऐसे लोगों को क्या किया जाता है?
देखेगा पहले वो दूसरे को, कैसे जंप करना है वो देखेगा पहले। सर मतलब ये सब लोग हैं, इनको डर लग रहा है पानी में कूदने से, तो क्या करना चाहिए? सर धक्का दे देना चाहिए। बिल्कुल सही है। या फिर दूसरा जाएगा और बोलेगा अरे इसमें कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं, चलो हम साथ में जंप करते हैं। होता है। यस सर, होता है। आपने बचपन में बहुत बहुत सारी चीजें ऐसी की है कि आपको डर लग रहा था, लेकिन देन व्हाट इज ईएमएफ हियर? दिस इज नॉट ईएमएफ। तो आपको डर लग रहा था, लेकिन आपके दोस्त ने कहा अरे डरने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना साथ में। तो व्हाट दे डू इज you can have some stimulus. Stimulus होता है ना, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आपको इस संडे को हम साइंस सेंटर जाएंगे नागपुर, ठीक है? तो कितने लोग हैं जिनको पेरेंट को मतलब पूछना भी नहीं पड़ेगा, उनको बता दिया तो चलता है? ऐसे कितने लोग हैं? क्या हम जा सकते हैं फटाफट? इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं। लेट मी आस्क टू गर्ल्स। कोई नहीं। फिर आप क्या करोगे? जाना तो है आपको, फिर आप क्या करोगे? You will not. जाएंगे, हाँ, पूछेंगे सर पहले। और क्या करें? कन्विंस। आप खुद कन्विंस करेंगे? नहीं, देखो, पेरेंट का विश्वास आप पे कम होता है, आपके दोस्तों पे ज्यादा होता है। Am I right? यस सर, बता के जाएंगे कि किसके साथ जा रहे हैं तब जाने एग्जैक्टली, देंगे। एग्जैक्टली। और अगर कोई उनके नजर में, अगर कोई आपसे टैलेंटेड है, आपसे थोड़ा सा अच्छा है वो परफॉर्मेंस में, ऐसा उनको उनका नजरिया, वो जो जो भी है, तो उसके साथ जा रहा है क्या, फिर ठीक है। तो दैट इज अ स्टिमुलस। नाउ दैट person can just ask this electron, this photon can ask this electron, come on, jump. So what will happen? This original photon is like this, and there will be another photon. This electron will jump down, that will give out the energy, and that will be exactly same as that of this. Exactly same. रेप्लिका होगा वो। अब ये दो फोटोन क्या करेंगे? ये दो फोटोन क्या करेंगे? जैसे आपको मान लो कि इसको जाना है, ट्रिप पे जाना है, तो आप क्या करोगे? चार लोगों को ही पूछोगे? क्लास का ट्रिप है, आप क्या करोगे? अरे तू भी चल, तू भी चल। तो एक केस घर पे तो एक गया, फिर वो तो तैयार हो गया, फिर वो दोनों दूसरे दो को तैयार करते, फिर चार को तैयार करते। समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग हियर। नाउ these two photons can take this two electrons down. अब दो फोटोन दो इलेक्ट्रॉन डाउन कर रहे हैं। दो फोटोन तो ओरिजिनली है ही, ये पहले के है, ठीक है? और ये जो दो बन गए अभी, ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए, तो ये चार हो गए। That means one electron has excited one photon has excited one electron to come down, and we get two photons. And then these two photons will de-excite two more electrons to come down, and we get four. Now this four can de-excite four another electrons which are waiting there, and that can become eight, and so forth. तो 8 का फिर 16 होगा, फिर 32, 64, 2048 का गेम जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। आगे ध्यान में। Since there is a stimulus, this is called a stimulated emission. क्योंकि इसमें इनिशियली फोटोन इज इंपॉर्टेंट, वो खुद होके इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे। They will need some another photon, other force, and therefore
that is called as stimulated emission. Any doubt? Any doubt? Any question? नो सर. पक्का? यस सर. डायग्राम देख के भी आपको क्वेश्चन नहीं आया? चलो आपका क्वेश्चन नहीं तो मैं पूछ लेता हूँ. ये बताओ कि ये फोटोन तो यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर है, तो ये फोटोन इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कैसे करेगा? एक हो गया. दूसरा क्वेश्चन, ये फोटोन तो आगे चला गया ना, ये इधर आगे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन तो पीछे ही है, तो ये इस पे कैसे स्ट्राइक करेगा? उल्टा जाएगा कैसे? फिर इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएगा, कैसे होगा? आपके दिमाग में नहीं आया? How many of you thought about this question? Raise your hand. इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आया? सरप्राइजिंग आना चाहिए. सर एक बार रिपीट कीजिएगा ना प्लीज. बिल्कुल. देखो, ये डायग्राम जो मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, ये एक फोटोन आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे है, और हम कह रहे हैं कि ये फोटोन, दिस फोटोन स्ट्राइक्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइक करेगा तभी तो वो नीचे आएगा इलेक्ट्रॉन, देन इट विल जंप डाउन and then it will give another photon which is exactly same as that of this. एक फोटोन जो ओरिजिनल है वो है ही एज इट इज, उसके जैसा ही दूसरा फोटोन क्रिएट होगा. ये कैसे? फोटोन तो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, फिर ये फोटोन दोनों आगे जा रहे थे, एंड सडनली आई सेड दैट these two photons will de-excite these two electrons. de-excite मतलब एक्साइटेशन का अपोजिट. एक्साइटेशन मतलब लेवल 1 to 2, ठीक है, और de-excitation 2 to 1 और 3 to 1 इन दिस केस. समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया? जो सिंगल फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है, इसलिए सेकंड फोटोन क्रिएट होता है. वो ठीक है, लेकिन ये फोटोन तो आपको सेंटर में दिख रहा है ना, 2 लेवल के सेंटर में दिख रहा है ऑलमोस्ट, ये ठीक है, और इलेक्ट्रॉन तो ऊपर है, तो स्ट्राइक कैसे करेगा? हाँ, अगर मैं फोटोन इस तरह से निकालता, फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो आप कैसे, हाँ ये स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसे तो निकाला नहीं मैंने. फिर सर वहाँ पर कोई सरफेस होगी ना, मेटल सरफेस या फिर जो कुछ भी, तो फिर वो जो फोटोन की एनर्जी होगी वो उसको स्ट्राइक करेगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके. ओके, गुड लॉजिक. एनी अदर? इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे वाइब्रेट होता होगा. ओके, गुड लॉजिक. एनी अदर? बिकॉज ऑफ रेडिएशन? नहीं वो ठीक है, रेडिएशन की वजह से हो रहा है सब. एनी अदर? नहीं. ठीक, शायद आपने कल का लेक्चर ठीक से सुना नहीं. व्हाट आई सेड दैट दीज आर द रिप्रेजेंटेशन, जो है ना वेव का रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज मीन बाय रिप्रेजेंटेशन? अगर मैं ये निकालता हूँ, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये डायग्राम जो निकाला मैंने, ये क्या है? Human being. Human being, right? You understand it. But is it really the human being? ऐसे होता है क्या? No. नहीं. तो दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. ऐसे मैंने निकाला मतलब ह्यूमन बीइंग है. दिस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग.
रिमेंबर, ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज नॉट समथिंग दैट ओरिजिनली ऐसे होता है, नहीं, ओरिजिनली ऐसे नहीं होता। ठीक है, ओरिजिनल कैसे होता है हम कल पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि ये फोटोन आया, दैट हैज स्ट्राइक ऑन दिस इलेक्ट्रॉन एंड देन इलेक्ट्रॉन हैज जम्प डाउन। जम्प डाउन मतलब कहाँ पे जाएगा वो, नीचे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सपोज मटेरियल है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विल जम्प फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। इज दैट व्हाट यू वांट टू से? इलेक्ट्रॉन जम्प्स डाउन या इलेक्ट्रॉन गोज अप, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है? No, sir, it comes down. कैन यू रिपीट? आई कुड नॉट हियर प्रॉपर्ली। No, sir, it jumps down इट जम्प्स डाउन, यहाँ से यहाँ। to the lower energy level. वो कहाँ होती है? एटम में। यस, तो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आप ऊपर से नीचे जंप हो रहा है। जंप कैसे होगा? नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, if I give you say 1000 rupees to you, ठीक है, आपको मैंने 1000 रुपये दे दिए, क्या होगा? आप नाराज हो जाएंगे? हाँ, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? We will get excited. विल गेट एक्साइटेड। लेकिन अगर आप एक्साइटेड हो गए, इसका मतलब है आप ऊपर तो नहीं बैठोगे, चेयर पे बैठोगे, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. हाँ, yes, energy rich, very good, very nice terminology, energy rich. So you have more energy now in your pocket. ठीक है, अब आप उसको 1000 रुपीज लेके गए, मार्केट में गए, कुछ खरीदा, 1000 रुपीज खर्च कर दी, आप में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आप पहले थे वैसे थे, सिर्फ आपकी एनर्जी पहले कम थी, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। दिस इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन। ये आपने एब्सॉर्ब कर ली एनर्जी, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट, ओके, so now you are excited and then you studied. So you can just study spontaneously or stimulatedly, जबरदस्ती से पढ़ाई की या अपने आप पढ़ाई की, तो एनर्जी डाउन हो गई। Similar kind of thing what you are talking about. It is not at all, this y-axis is not at all a displacement or distance axis, it is energy axis, याद रखना हमें, this is energy axis। तो आपकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, दैट्स इट, देयर इज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस। तो अगर आप एक मटेरियल लेते हैं और एक मटेरियल में अगर आप ये कंसीडर करते हैं कि दिस इज व्हाट द एटम इज, एनी एटम, एंड यू टॉक अबाउट सम atomic level, then another atom with some other electron. Now this electron and this electron, both atoms are very close to each other, वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज है, but you can't say that this is excited and this is not excited. It may be, suppose this is excited and this is in ground state, it is possible, it is possible. It is not something like कि ये एक्साइटेड है तो ऊपर चला जाएगा, नो, बिकॉज एक्साइटेशन का मतलब हो गया आपकी एनर्जी ज्यादा है, दैट्स इट, नथिंग मोर। आगे धन में एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एटम के एक शेल से दूसरे शेल, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल्स में जंप करेंगे क्या? यस, एनर्जी लेवल में वो चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन एटम ही ऊपर चला गया या एटम नीचे आ गया, नो, दैट इज नॉट द इंटरप्रिटेशन। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन कि सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, बट दिस डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है ये, तो वी जस्ट निग्लेक्ट इट, इट इज नॉट सेम एज दैट ऑफ दिस, ठीक है। तो
यहाँ पे देखो कि ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है और एक्साइटेड एटम. Now when it get de-excited, a photon will be coming out. Now this photon can strike this electron जो ग्राउंड में है, ठीक है. Then this can absorb this electron, sorry photon को absorb कर लेगा या फिर छोड़ देगा. या ऐसा भी हो सकता है एक एटम इसके आगे हो जो एक्साइटेड है, यहाँ पे सपोज एक्साइटेड एटम, and then this photon strikes on this atom so that it will get de-excited. एक्साइटेड है ऑलरेडी, de-excite हो गया. जैसे आपको मान लो कि आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, और आपके दोस्त के पास भी 1000 रुपये आ गए. आपका दोस्त, आपको तो खर्च करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, आपके दोस्त ने बोला अरे चल यार पार्टी करते हैं, फिर आप दोनों मिलके पार्टी में चले गए, ठीक है, जो भी है पैसा खर्च कर लिया. तो your friend has stimulated you to give out the energy. तो आपने एनर्जी दे दी, तो द ओरिजिनल वो तो देने वाला था और ये हो गया है. तो ऐसे ये फोटोन की संख्या बढ़ती जाती है. इट मल्टीप्लाइज. 2 है तो 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, एंड सो एंड सो. अनुराग, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीशियम हियर? This is what it is called as stimulated emission. Now tell me how many of you have not still understood what is stimulated emission? Just raise your hand. किसको नहीं समझ में आया? सर एक एटम से एक्साइट मतलब निकले हुए फोटॉन्स दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं. सिंपल है ना. मान लो कि आपको 1000 रुपये मिल गए, आप दुकान में गए, वहां पे कुछ खरीदा, ठीक है, आपके तो पैसे खत्म हो गए. अब दुकानदार को 1000 रुपये मिल गया. नाउ ही इज एक्साइटेड. वैसे अरे चलो आज 1000 रुपये का फायदा हो गया अपना, तो कुछ मिठाई खरीद लेते, राइट? यस सर. That can happen. Yes, it can be absorbed by another atom. Yes, Shraddha, what you are not understood? सर आपने कहा वो थर्ड वाला जो एटम निकाला है आपने कहा कि दूसरे एक्साइटेड मतलब डी एक्साइटेड मतलब इलेक्ट्रॉन में से जो फोटॉन निकला है, वो जो उसके बाजू में जो एटम है जो उसका इलेक्ट्रॉन पहले ही एक्साइटेड स्टेट में है, उसको मतलब वो इलेक्ट्रॉन अगर फोटॉन मतलब ले लेता है तो फिर सर वो डी एक्साइटेड कैसे होगा? क्योंकि हमने तो मतलब अभी तक तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में तभी जाते जब वो फोटोन लेते, तो फिर आपने कहा कि वो फोटोन लेने के बाद डी एक्साइटेड होता है. अगर मेरे हाथ में मार्क्स होते ना, मैं अभी के अभी 10 में से 10 दे देता. वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन. I expect these kinds of questions. Okay, let us talk about Bohr's theory. First orbit, second orbit, थर्ड ऑर्बिट, ये सेम स्पेस पे नहीं होता है, ठीक है, और ये एनर्जी लेवल जो है वो डिफरेंस जो है एनर्जी लेवल का, ये कम कम होता जाता है. Now suppose the electron is here and there is a photon that is striking on this electron. Now how many choices these electron have? एक, वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ बोलेगा कि नहीं छोड़ दो, I don't want to get excited or I don't want to get de-excited. That is one possibility. वो छोड़ देगा, जैसे आया वैसे चले जाओ. दूसरा पॉसिबिलिटी है इट विल एब्सॉर्ब, जो हमने अभी तक पढ़ा है, 12 तक पढ़ा है. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. एंड यस, इफ this energy, suppose this is the energy h nu, and suppose this is energy E2, तो E2 में h nu ऐड करने के बाद अगर कोई यहाँ पे लेवल आती है, सपोज नंबर 4, then certainly it will go there. There is a possibility that it will go there, but it is very less possibility, very less possibility. Okay? There is third possibility, again it is very less, it can go down.
दैट इज अ स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, एक नो एक्शन, दूसरा एब्सॉर्प्शन, और तीसरा स्टिमुलेटेड इमिशन, नॉट नॉर्मल, स्टिमुलेटेड। So we are talking about the probability. Why? Probability में बात क्यों कर रहे हैं? सर बिकॉज उसकी एबिलिटी मतलब उसके कैपेबिलिटी पर है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को मतलब फोटोन जो आया अगर वो ज्यादा एनर्जी का होगा तो वो एक्साइट हो जाएगा, अगर उसके बराबर एनर्जी का है तो वो वही रहेगा, और अगर मतलब नहीं नहीं नहीं, अगर पर्टिकुलर एनर्जी का है तो ही वो या तो एब्सॉर्ब करेगा या स्टिमुलेटेड इमिशन करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी का है। पर्टिकुलर मतलब जैसे हायर एनर्जी जो है, ये डिफरेंस अगर है, ये अगर डिफरेंस वाला एनर्जी है तभी वो एब्सॉर्ब करेगा। जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल वो प्रोडक्ट जो है वो 99 का है और आपके पास 100 रुपीज है, देन यू कैन बाई इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर प्रोडक्ट 99 का है और आपके पास 70 रुपीज ही है, देन यू कैनॉट बाई इट। ठीक है, तो एनर्जी अगर कम है, इतनी है सपोज, इतनी है, देन इट कैन गो टू लेवल 4 और इट कैन से आई डोंट वांट दिस। तो इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लिटरल लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन इज सजीव नहीं है, निर्जीव है, but then certainly sometimes it acts like the live what do you say in English, living thing। तो ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो वो उस टाइप का अगर आपको दे दिया तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। दूसरी मतलब नंबर 1 की पॉसिबिलिटी, नो एक्शन, इट विल से ओके लेट द एनर्जी कम एंड लेट इट गो। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि वो स्टिमुलेटेड इमिशन करेगा। उसके लिए ये एनर्जी है, ये एनर्जी एग्जैक्टली E2 - E1 चाहिए, एग्जैक्टली। वो कैसे लाना है वो बाद में देखेंगे। क्लियर? मजा आ रहा है? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी लेवल क्रॉस कर सकता है? कितनी भी कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, स्टैंड्स, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल। तो इसके बाहर जो है वो एटम के बाहर चला जाता है। नाउ द इलेक्ट्रॉन कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर, इट कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर, इट कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर। कितनी एनर्जी दे रहे हैं आप, उस पर डिपेंड है। इट कैन गो हियर ऑल्सो, इट कैन गो हियर ऑल्सो, एंड इट कैन गो आउट ऑफ द एटम। तो ये आउट ऑफ द एटम निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको एनर्जी पोटेंशियल कहते हैं। आपने पढ़ा होगा उसको, बाइंडिंग एनर्जी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समथिंग लाइक दैट इन केमिस्ट्री, नॉट इन फिजिक्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो उसको आयनाइजेशन के एनर्जी कहते हैं कि आयनाइज करने के लिए कितना एनर्जी लगता है। तो अगर बाहर का है तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अंदर एक लेवल नीचे जाओ, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, एंड सो। इट डिपेंड्स ऑन, जैसे मान लो कि कूपन है ना, अगर ये आप कूपन वाली बात करते हैं तो आपके पास कूपन है। अब आपके पास अगर 10 रुपए वाला कूपन है तब आप वो खरीद पाएंगे, नहीं तो खरीद नहीं पाएंगे। अगर आपके पास 5 वाला ही कूपन है तो नहीं करते। 15 वाला कूपन है, उसके पास 5 वाला कूपन वापस देने के लिए है ही नहीं, देन यू कैनॉट बाय। तो इट इज समथिंग लाइक कूपन सिस्टम, वो फिक्स है, उतना अगर है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट लेक्चर भी आपका लेट मी स्टॉप हियर।